میو ہسپتال میں کرونا ویکسینیشن کی افتتاحی تقریب ڈاکٹر یاسمین راشد تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. میو ہسپتال میں کرونا ویکسینیشن کی افتتاحی تقریب ہے جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ گئی ہیں. مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ محمد بلال سے. جی بلال، بتائیے گا اس تقریب کے حوالے سے. جی بالکل، ہیلتھ پروفیشنلز کو آج لاہور کا جو پہلا میو ہاسپٹل میں ویکسین سینٹر بنایا گیا ہے، اس کا باقاعدہ افتتاح کرنے کے لیے صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد میو ہاسپٹل میں پہنچ گئی ہیں اور ویکسین سینٹر جو بنایا گیا ہے اس کا دورہ بھی کر رہی ہیں اور جو ویکسین آئی ہیں ان کا معائنہ بھی کیا ہے اور جو ریفریجریٹر رکھا گیا ہے اس کو بھی چیک کیا ہے. صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت جو تمام ڈاکٹرز کی جو لسٹیں ہیں میو ہاسپٹل کی ان کو لسٹوں کو بھی چیک کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پہ جو کرونا کی جو ویکسین ہے اس کا لگا کے اس کا افتتاح بھی کریں گی. اس حوالے سے جو محکمہ صحت کے جو افسران ہیں وہ بھی صوبائی وزیر صحت کے ہمراہ ہیں اور صوبائی وزیر صحت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ویکسین کا جو عمل ہے یہ لاہور سے پنجاب بھر میں پھیلایا جائے گا اور 190 کے قریب جو ویکسین سینٹرز ہیں یہ بنائے گئے ہیں تاکہ تمام ہیلتھ پروفیشنلز کو کرونا سے بچاؤ کی جو ویکسین ہے یہ لگائی جا سکے. جی اچھا بلال، بتائے گا ہیلتھ پروفیشنلز کو ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے، کب تک یہ مرحلہ جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا ہیلتھ پروفیشنل کو ویکسین لگانے والا؟ جی بالکل، یہ مرحلہ وار یہ جو سسٹم ہے یہ جاری رہے گا. آج 250 وائلز جو ہیں یہ میو ہاسپٹل میں آئی ہیں جس میں تقریباً ایک وائلز کے اندر 3 سے 4 جو ڈوزز ہیں یہ نکلیں گی جو کہ ہیلتھ پروفیشنلز کو لگائی جائیں گی. پھر اس کے بعد تمام ہیلتھ پروفیشنلز کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے مرحلے میں جو 65 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں جو کہ بیمار ہیں ان کو کرونا کی جو ویکسین ہے یہ لگائی جائے گی. اور یہی جو سسٹم ہے یہ لاہور کے 25 ہسپتالوں کے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر یہ ویکسین سینٹرز بنایا گیا ہے تاکہ تمام ہیلتھ پروفیشنلز کو کرونا سے بچاؤ کی جو ویکسین ہے یہ لگائی جا سکے اور جو کووڈ کے جو مریض آ رہے ہیں ان کو بہترین طریقے سے جو علاج معالجہ یہ کر سکے. پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جب ویکسین آئے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام جو بقایا جو رہ جائیں گے ہیلتھ پروفیشنلز ان کو ویکسین لگنے کے بعد 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو یہ ویکسین لگے گی. پھر اس کے بعد یہ اس ویکسین کو عام افراد کے لیے بھی مختص کیا جائے گا. لیکن تاحال جو ویکسین جو پہنچ رہی ہے مختلف ہسپتالوں میں ان کو جو پریورٹی دی جا رہی ہے وہ ہیلتھ پروفیشنلز کو ہی دی جا رہی ہے اور ہیلتھ پروفیشنلز کو پہلے مرحلے میں جو ویکسین ہے یہ لگائی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، محمد بلال ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمارے سے موجود ہے ہمارے نمائندہ سجاد کاظمی. سجاد سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. سجاد، بتائیے گا ویکسینیشن کا مرحلہ جو ہے افتتاح کر دیا گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی پہنچ چکی ہیں اور کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. میو ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کرونا ویکسین کا افتتاح کر دیا ہے جس میں ان کے ساتھ پروفیسر خالد مسعود گوندل، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، پرو وائس چانسلر پروفیسر اسرت اسلم جو کہ میو ہسپتال کے سی او بھی ہیں وہ موجود ہیں. اس موقع پر ویکسینیشن سینٹر میں افتتاح کے موقع پر جو ہے وہ دیگر ڈاکٹر، ہیلتھ ورکرز اور عملہ بھی شامل ہے جن کی آج باری ہے جو کہ باری ٹائم وائز جو ہے اپنے ویکسین لگوائیں گے. ویکسین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میو ہاسپٹل کے اندر ہی صرف 6000 جو ہے ہیلتھ ورکر کو ویکسین لگے گی اور یہ ایک مرحلہ ہے کیونکہ ایک ویکسین لگنے کے بعد ایک ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل سٹاف جو بھی ہے اس کو کم از کم 1 گھنٹہ ریسٹ دیا جائے گا. وہاں پہ اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی، اس کا بلڈ پریشر، شوگر، یہ وہ دیگر معاملات چیک کیے جائیں گے جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو 70,000 پنجاب کے اندر ویکسینیشن کی جائے گی افراد کو، ہیلتھ ورکر کو، اس مرحلے کو فوری طور پہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر جو ہے مکمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں 1 بائی 1 کر کے ویکسین جو ہے وہ ٹائم لے گی. اور اس طرح جو دوسری جانب یہ دیکھا گیا ہے کہ پرائیویٹ جو ہاسپٹلز کے عملہ ہے، جو ہیلتھ ورکر ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ ہی ویکسینیشن کی جائے کیونکہ ہم بھی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. اس لیے ان کی تعداد جو ہے اگر ڈالی جائے تو اس وقت جو تعداد 3,80,000 بنتی ہے اور 3,80,000 تو پاکستان کے پنجاب کو کوٹا بھی نہیں ملا ہے ویکسینیشن کا. ٹوٹل 5 لاکھ میں سے 70,000 پنجاب کے حصے میں آیا. اب اگلے مرحلے میں اس ماہ یا اگلے ماہ تک جب ویکسینیشن آئے گی تو پھر بھی مشکل ہے کہ ہیلتھ ورکرز کو پہلے مرحلے میں ہی 3,80,000 جو ہے وہ ویکسینیٹ کیا جا سکے. جی اچھا سجاد، یہ بھی بتائے گا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہاسپٹلز میں اس وقت جاری ہے یہ مرحلہ ویکسینیشن کا اور 25 ہاسپٹلز بتائے جا رہے ہیں جہاں پہ جاری ہے کہ ہیلتھ پروفیشنلز کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. یہ بتائے گا کب تک یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا اور یہ بھی بتائے گا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں اس ویکسین کے؟
जी बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी फाइजर जो बरतानिया की कंपनी है जिसने ये वैक्सीन तैयार की है, उसके ट्रायल जब हुए थे तो ट्रायल के दौरान एक 100 के करीब अफराद की हलाकत हुई थी, और जब ट्रायल मुकम्मल होने के बाद वैक्सीनेशन की गई है तो उसमें भी अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अफराद की हलाकत हो चुकी है। तो कोई भी चीज़ है, जैसे गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर यास्मीन राशिद बाकायदा कह चुकी हैं कि ये हुकूमत या किसी अफराद की जिम्मेदारी ही नहीं है, अगर वैक्सीनेशन का कोई किसी को साइड इफेक्ट होता है तो उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। तो इससे ये कहा नहीं जा सकता कि इसके किस तरह के साइड इफेक्ट होंगे, क्या सूरत हाल होगी। अभी जो आज इफ्तिताह हुआ है, अभी इसमें 1 घंटे का वेट किया जाएगा, पहले मरहले में देखा जाएगा कि साइड इफेक्ट किसी को उसकी वजह से बुखार तेज हुआ है, ब्लड प्रेशर तेज हुआ है, शुगर का मरीज है, क्या सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल को देख के फिर ही जायजा लिया जा सकता है कि ये मौजूदा जो वैक्सीन ठीक है लगाई सज्जाद, जा हमारे रही साथ ही रहिएगा। आपको बताते चले कि डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है इनके लिए, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। आपको पता है सबसे ज़्यादा मरीज़ इस पिछले साल में अकोमोडेट मेयो अस्पताल में हुए। मेयो अस्पताल में 480 बिस्तरों पर मुश्तमिल हमारा हाई डिपेंडेंट ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स सब कुछ यहाँ मौजूद थे, और किसी मरीज़ के लिए किसी किस्म की दवाई की जो ज़रूरत पड़ी सब दवाइयाँ भी इनको दी गई। तो पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, पूरे पंजाब में जिन्होंने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है, और ये अभी जंग जारी है। तो हमारी क्योंकि जंग जारी है, अभी कोरोना कहीं गया नहीं है, तो इसलिए हुकूमत की तरजीहात में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने महाज संभाला। और मैं जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों के सामने अपना अक़ीदा पेश करना चाहती हूँ। जिस तरह लोगों ने कुर्बानियाँ दी, डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, ये इन्हीं की कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बहुत हद तक बाकी दुनिया के ममालिक के मुताबिक सुर्खरू है। आज बिस्मिल्लाह शुरू हुई है। आपको पता है पहली 5 लाख डोजेज़ जो हैं वो साइनोफार्मा जो ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल कंपनी है चाइना की, उन्होंने हमें तोहफ़तन भेजी और हम उनके बड़े शुक्रगुज़ार हैं। चाइना हमेशा हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, आपको पता है। और इसके अलावा उन्होंने पूरी एश्योरेंस दी है कि जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होगी वो पूरी करेंगे। 70,000 डोजेज़ आज पंजाब में आई हैं। उन 70,000 डोजेज़ में से तकरीबन 27,625 डोजेज़ जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर 32,000, प्राइवेट जो निजी अस्पताल हैं उन्होंने भी बहुत खिदमत की है, उनके अंदर 7,200। इसी तरीके से जो हमारे फ्रंट लाइन ड्राइवर्स, एम्बुलेंसेस 1122 जो मरीज़ों को शिफ्ट करते थे वो तकरीबन 650। और इसी तरह हमारे जो लैब के लोग हैं जो लोगों के घरों में जाके टेस्ट करते रहे हैं, वो इंशाल्लाह कोई तकरीबन 1800 बंदों को वो लग रही। और ये पहली खेप है, इसके 21 दिन के बाद दूसरी डोज मिलनी है। इसके अलावा कोवैक्स जो एक कंसोर्शियम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ऑलरेडी उन्होंने कमिटमेंट कर ली है। इस महीने के एंड में और अगले माह के अंदर हमें टोटल डोजेस पहले आ रही हैं 7 मिलियन, यानी हमारे पास 70 लाख, और उसके बाद 10 मिलियन, यानी टोटल मिला के 170 मिलियन आए, यानी 17 मिलियन आएगा, यानी 1,70,00,000 डोजेज़ आएंगी। इसके अलावा कॉन्साइना के साथ जो हमारा वो चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, उसके इस वक्त नताइज सामने आने शुरू हो गए हैं। अगले 2-2.5 माह के अंदर, अगले 2 हफ्तों के अंदर जो सप्लाई उनकी है वो इंशाल्लाह भी, क्योंकि हमारी कमिटमेंट उनके साथ इस तरह की है कि एम्पल अमाउंट ऑफ इट विल बी अवेलेबल फॉर पाकिस्तान। फैसल सुल्तान साहब के कहने के मुताबिक ये है कि अगले 5 माह में इंशाल्लाह पाकिस्तान की कम से कम 10 करोड़ की आबादी जो है उसको ये वैक्सीन मिल जाएगी। और इसके लिए पैसे मखसूस किए हुए हुकूमतों ने, न सिर्फ हमने बल्कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी एम्पल अमाउंट मखसूस किया हुआ, इसलिए कोई इंशाल्लाह उस पर मसला नहीं बनेगा। सबसे पहले जैसे आपको कहा, हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जो तकरीबन हमारे 5 लाख लोग बन रहे हैं,
उसके बाद अगली जो हैं वो जो वल्नरेबल लोग हैं, ख़ास तौर पे जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, पहला वो ग्रुप होगा, फिर उसके बाद जो 60 साल से ज़्यादा के हैं, फिर जो 55 साल के साथ, और इसी तरह करते करते वल्नरेबिलिटी के मुताबिक इंशाल्लाह सबको वैक्सीन मिलेगी। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वाइस चांसलर साहब का और असद साहब का, डॉक्टर असद असलम का। जितनी मेहनत इन लोगों ने की है और इनके सारे स्टाफ ने की है, मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज बिस्मिल्लाह जो की है वह हमने उनके हेल्थ वर्कर्स से की है, और इंशाल्लाह अगले 15 दिनों के अंदर, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर ने और टर्शरी केयर ने मिल के एक बहुत अच्छा किस्म का मुस्बत सारा प्रोग्राम है, जिसमें जिन अस्पतालों ने, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों ने डील किया है, उनके भी वर्कर्स को मिलेगा, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के वर्कर्स को मिलेगा, और इंशाल्लाह इस तरीके से हम ये अपनी जो जंग लड़ रहे हैं कोविड के ख़िलाफ़, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हॉस्पिटल से तो आज आपने आगाज़ कर दिया, लेकिन और हॉस्पिटल्स में अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची, उसका अमल कब से शुरू होगा, कब से वो लोग भी स्टार्ट कर देंगे वैक्सीन लगाना? देखिए जी, वैक्सीन इस वक्त पंजाब पहुंच गई है। हमारे पास सारी वैक्सीन यहाँ जो 70,000 डोजेज़ हैं वो स्टोर हो गई हैं। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का एक बाकायदा पूरा पैटर्न बना हुआ है, वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। मैं कैप्टन उस्मान साहब से कहूँगी वो आपके साथ सबके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने इंश्योर की है कोल्ड चेन, हमारे पास 189 सेंटर्स हैं और रेफ्रिजरेटर जो हैं वो हमने इंश्योर की है कि कोल्ड चेन मेंटेन होगी, और कोल्ड चेन मेंटेन होने की वजह से वी विल बी एबल टू लुक आफ्टर द वैक्सीन इंशाल्लाह। जी, अस्पतालों की जो इंतजामिया है ना उन्होंने खुद वैक्सीनेशन करवाई है ना मैडम ने खुद करवाई है, जब तक वो लोग नहीं करवाएंगे हम लोग भी तब तक नहीं करवाएंगे। देखिए बेटा, मेरा ख्याल है कि मैंने तो अगर कहा था कि मेरी तो उम्र वैसे 70 साल है, ठीक है जी, बूढ़ों में तो मैं आ जाऊंगी। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, मैं ज़िम्मेवार हूँ आपके सारे लोगों के लिए, तो मुझे तो बड़ी शर्म आएगी कि मैं पहले वैक्सीन ले लूँ और आप बाद में लें। मैं तो पहले कोशिश करूँगी कि सारे लोगों को मिले। आपको अगर याद हो तो मैं जब शुरू में मास्क का मसला बना था तो आपको पता है मैं मास्क इसलिए नहीं पहनती थी, हालांकि मैं भी आपकी जितने एक्सपोज थी, कि मुझे होता था कि अल्लाह करे वो वक्त आए कि हम पाकिस्तान में हर बंदे के वास्ते। मैडम, पीटीएम का जो हो रहा है करना, इसके हवाले से अब क्या कहेंगे? उनको लगवानी चाहिए, मुझे करने में आ रहे हैं। प्राइमरी का जो चार्ट आता है रोजाना की बुनियाद पर, उसमें सबसे ज्यादा मुतासर होने वालों की तादाद 30 से 40 साल की है। आप तो स्टार्ट कर रहे हैं 65 साल से सबसे ज्यादा। जी, ये जो लोग ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, देखिए मैं आपको बात बताऊं, वल्नरेबिलिटी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सारी दुनिया एक स्टेटिस्टिक्स फॉलो कर रही है, एज एंड प्रोफेशन। ये देखा गया है कि जो कम उम्र के लोग हैं, और हमारे पास भी जो सारे स्टेटिस्टिक्स हैं, उन 90% अगर कोई इंतकाल किए हैं तो वो लोग हैं जो 55 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इस वजह से सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उनको पहले हम प्रोटेक्ट करेंगे। और ये मैं आपको पूरी यकीन से बता रही हूँ कि अल्लाह ताला खैर रखे। आपको पता है कि इस मेहनत से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम किया है, पंजाब हैज़ फेयर्ड मच बेटर, सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। वैक्सीनेशन के मसले में भी बिल्कुल इंसाफ से मुकम्मल तौर पे सबको वैक्सीनेशन। सेकंड डोज है वो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे या भी वो नहीं जी, ऑलरेडी हो चुके हैं, दे आर सेंडिंग इट। वजह यह है कि वो तो ऑलरेडी कमिटेड डोजेज है ना। जब आपने उन्हें 5 लाख कही है, उसका मतलब है 2.5 लाख वर्कर्स जो हैं उन सबको ये मिल जाएगी। क्या करें? एंटीबॉडीज इसमें उन्होंने कहा है कि 80 to 5% इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है जैसे जैसे अब हम एंटीबॉडीज पे काम करेंगे, हम आपके साथ सहाफियों के लिए क्या किया आपने? हम लोग सहाफियों के लिए क्या किया? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है कि फ्रंट लाइन वर्कर जो डॉक्टर है, किसी सहाफ़ी अगर आपको ज़रूरत पड़ी है तो हम सामने आपके खड़े रहे और आपके मरीज़ों को सबको दाखिल किया। जी मुझे पता है बेटा, मैं ये बात बता रही हूँ, फ्रंट लाइन वर्कर फिर भी आपका डॉक्टर